Good morning students, welcome to class 11 e-learning classes. Let us proceed with our previous discussion, motion in a straight line, and we were discussing about acceleration. Today we shall discuss various types of graph: distance time graph, velocity time graph and acceleration time graph for bodies traveling in a straight line. And we will also see how to calculate acceleration, and we'll try to find out the graphical meanings, graphs in motion. Basically today's topic is this. See, I was discussing acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration. We have summarized two formulas. Number one, to calculate average velocity, V average, it is xf minus xi by t2 minus t1. Then average acceleration, it is v2 minus v1 by t2 minus t1. And instantaneous velocity, it is dx by dt. And instantaneous acceleration, it is dv by dt. The rate of displacement, if the displacement or the position is differentiated with respect to time, okay, then it is instantaneous velocity, the change in velocity by time, the rate of change in velocity. If the velocity, which is a function of time, is given, it is differentiated with respect to time, then we get instantaneous acceleration. Let me give an example of this type of problems. Suppose x of t is given, okay, 5 t square plus 5t square plus 10t plus 30. Okay, now if I find, once if I differentiate it dx by dt, then I get v. Okay, v instantaneous. Okay, so then d by dt, if I differentiate 5t square plus 10t plus 30. Okay, now this is 5 is outside taken, and this is 2t plus this is 10. If I differentiate this with respect to time, then this will be 10 plus 0. In last class we have already discussed this. So this is 10t plus 10. So this is velocity as a function of time we have got. Now if I write acceleration, then it is dt by dt. So this is d by dt, d by dt 10t plus 10. Okay, so this velocity what I have got from this position time graph, position time equation. Again I am differentiating this. Okay, so now if I differentiate it, then it is, okay, dt ये हो गया 10t plus d by dt, एंड ये दोबारा हम डिफरेंशिएट इसको कर रहे हैं. हमको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन था, एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको वेलोसिटी आ गया. फिर अगर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है, ओके. सो दिस इज 10 इज टेकन आउटसाइड, दिस इज dt by dt 1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा. सो दिस एक्सेलरेशन नाउ इट इज 10. ओके, इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पर इसका आप यूनिट लिख सकते हैं, ये मीटर पर सेकंड. ये जो गिवन है ये मीटर में गिवन है सपोज. ठीक है,
position is given in terms of meter, the velocity you have got in meter per second because it is differentiated with respect to time, and then once more it is differentiated, then acceleration you can see the acceleration here it is 10. Now it is independent of time, it is independent of टाइम। इसका मतलब है कि ये टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, नंबर है। इसका मतलब है कि ये जो मोशन है इस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस मोशन में क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो द मोशन वेयर द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो दिस इक्वेशन व्हाट इज गिवन हियर 5t square plus 10t plus 30 it is the equation of a uniformly accelerated motion। कैसे पता चला? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 10 आया, कांस्टेंट है। तो जिस मोशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है विद टाइम इट इज यूनिफॉर्म। ओके, तो उस तरह का मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ सच अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, दिस इज द वे। अगर इस प्रॉब्लम में अगर हमको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो आप यहाँ t इक्वल टू 2 सेकंड डाल के यहाँ वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, आप ये नहीं पूछना है कि t इक्वल टू 2 सेकंड में क्या एक्सेलरेशन है, t इक्वल टू 5 सेकंड में व्हाट इज द एक्सेलरेशन, बिकॉज द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एट ऑल द टाइम, द एक्सेलरेशन इज 10 ओनली। ओके, अगर ये t का एक्सपोनेंट 3 होता तब यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट हो जाता, एक टाइम बच जाता। एक्सपोनेंट अगर 3, 4 कुछ होता। ठीक है, ओके। टुडे वी शैल डिस्कस सम ग्राफ्स। आज का मेन कंटेंट है ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स इन मोशन। ठीक है, ठीक है, 2-3 तरह का एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूं। एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक नंबर 1 हो गया, ध्यान से सुनिएगा। एक है यूनिफॉर्म मोशन, ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये x से t है। ओके, और ये से 10 सेकेंड के बाद 50 मीटर, 20 सेकेंड के बाद 100 मीटर। ठीक है, पोजीशन इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद 50 मीटर गया है, 20 सेकेंड के बाद ये 100 मीटर गया है। ठीक है, 30 सेकेंड के बाद 150, 40 सेकेंड के बाद 200। ठीक है, और एक रीडिंग ले लेते हैं कि 50 सेकेंड के बाद ये 250। ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ये इसका एक्सटी ग्राफ है। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट होता है, तो इसका स्पीड वर्सेस जो टाइम ग्राफ होगा, vt ग्राफ होगा, इसको कहते हैं एक्सटी ग्राफ हो गया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये ऐसे पैरेलल आएगा। ठीक है, यहाँ स्पीड कांस्टेंट है तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, ये लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब पूछेंगे सर इसका ये यूनिफॉर्म मोशन का, ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट।